Are you excited for some action song today? Are you ready to listen to the story? And are you ready to pray with us? We are going to do some stories today. You're going to hear some good word of God, and you're going to do an action song. So are you ready? Let's start with a small word of prayer. Join your hands, close your eyes, and let's bow our heads and look to God in prayer. Dear Lord Jesus, we thank you and praise you. We love you, Lord. Thank you, Lord, for protecting us for the whole week. Lord, as we begin our Sunday school, help us, guide us, Lord, so that we can worship you with one heart and one mind. Thank you, Lord. All our action song, all our praises, Lord, should bring praise and glory to your name. Thank you, Master. We ask this prayer in the mighty and most holy name of Jesus. Amen. We have some new friends today. They are Shamwell and Joshua. They are going to lead us in small worship. They're going to sing song for us. आइए हम जोशुआ और शैम्वेल का स्वागत करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए गीत गाएंगे और हमें वर्शिप में लेकर के जाएंगे. So let's welcome them. Hi friends, I'm Samuel. And I'm Joshua. Let's worship the Lord with the song. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious stone. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Not to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Thank you. Praise the Lord. Let's take our Bibles and read from the book of Psalms, chapter 119, verse 1 to 8. Happy are those whose lives are faultless, who live according to the law of the Lord. Happy are those who follow his commandments, who obey him with all their hearts. They walk in the Lord's ways. Lord, you have given us laws and told us to obey them faithfully. In keeping your instructions, if pay attention to all your commandments, then I will not put into shame. As I learn your righteousness, judgment, I will praise you with a pure heart. I will obey your laws, never abandon me. Thank you. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम अपने बाइबल ले लें और भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 1 से 8 पढ़ेंगे.
क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वो कुटिलता का काम नहीं करते हैं, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों का सीखूँगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूँगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारा लाइफ एक जर्नी की तरह है। हम इस ब्यूटीफुल सी दुनिया में आते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं। हम बस कुछ टाइम के लिए ही इस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आज अपनी लाइफ की जर्नी को इज़राइलिट्स के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे वो यात्रा कर रहे थे और इस यात्रा में हर जगह उनके लिए प्रॉब्लम था। बट आप जानते हैं, उन प्रॉब्लम से निकालने के लिए गॉड उनके साथ थे।
उनको हर ज़रूरत की चीज़ उन्हें दिए और उनको प्रोटेक्ट भी किए। ठीक वैसे ही आज भी गॉड हमारे साथ हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें वो सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए। आज की स्टोरी में हम सुनने वाले हैं कि कैसे गॉड इज़राइलिट्स को वॉर में विक्ट्री देते हैं और उसके बाद उनको कुछ लॉज भी देते हैं, कुछ रूल्स देते हैं, उनके लिए एक सिस्टम सेट करते हैं। फ्रेंड्स, इमेजिन करें, अगर रोड में आप चल रहे हों, हर तरफ से गाड़ी आ रही है और अगर पुलिस ना हो तो क्या होगा? लोग किसी की नहीं सुनेंगे और शायद एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इसीलिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी है और उस लॉ को फॉलो करवाने के लिए लीडर का होना वो भी बहुत ज़रूरी है। इज़राइलिट्स के लिए मोसेस तो लीडर था ही, मगर उनके पास कोई लॉ नहीं था, जिसके चलते इज़राइलिट्स जो मन में आता वो करते थे। गॉड चाहते थे कि उनके चिल्ड्रन पाप से दूर रहें और इसके लिए कुछ लॉ, कुछ नियम देते हैं। हम जानते हैं कि इज़राइलिट्स रेफीदीम पहुंच गए थे। वहाँ उनको पानी मिला, खाना भी मिला, बट गॉड वांटेड एवरीवन टू ट्रस्ट हिम, बिकॉज गॉड के लिए हर कोई इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप जैसे भी हैं, गॉड आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार अमालेकाइट ट्राइब के लोग इज़राइलिट्स पर बिना वजह के अटैक करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार लाइफ में ऐसे बिना वजह के प्रॉब्लम्स आएंगी और आती भी हैं। एट दैट टाइम रिमेंबर, गॉड आपके ट्रस्ट को टेस्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपको उन पे कितना ट्रस्ट है, कितना विश्वास है, और अगर आप पास हो जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, बल्कि हर प्रॉब्लम को आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। अब अटैक हुआ। मोसेस को एक आर्मी रेडी करनी पड़ती है और आर्मी का लीडर भी चुनना पड़ता है। देन मोसेस चूजेस जोशुआ एज द लीडर ऑफ इज़राइल आर्मी। और अब मोसेस अपनी लाठी के साथ हिल टॉप पर चला जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक चेंज है। आपको याद है, इजिप्शियन आर्मी से लड़ने के लिए गॉड हिमसेल्फ केम डाउन, बट यहाँ गॉड लेफ्ट द इज़राइलिट्स टू फाइट। ही जस्ट गेव देम स्ट्रेंथ टू फाइट। गॉड इनडायरेक्टली उनको मदद किए। कई बार गॉड हमें इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम के लिए सब कुछ याद कर लिए हों, और गॉड हमें इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं कि जब हमें क्वेश्चन पेपर मिले तब हमें याद आ जाए कि हम क्या पढ़े हैं। इसीलिए बाइबल बताती है, लीन नॉट इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग बट ट्रस्ट गॉड। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। फिर क्या हुआ? इज़राइल आर्मी तो रेडी होकर अपने दुश्मन से लड़ने के लिए चली गई थी, लेकिन वे जीते या हारे, मैं आपको बताती हूँ। जब तक मोसेस का हाथ स्वर्ग की ओर उठा रहा, तब तक इज़राइलिट्स जीतते गए। हाथ नीचे आ जाने पर अमालेकाइट्स जीतने लगे। लेकिन मोसेस भी तो एक नॉर्मल इंसान था, और इसीलिए जब उसका हाथ हैवी हो गया, जब उसका हाथ थक गया, वो टायर्ड हो गया, तब एरन और हूर स्टोन पर उसको बैठाकर उसका हाथ पकड़े रहे, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। वे शाम तक उसे पकड़े रहे और गॉड इज़राइलिट्स को विक्ट्री देते हैं। इजिप्ट से निकले हुए उनको 3 मंथ्स हो गया था और अब इज़राइलिट्स माउंट साइनाई के पास पहुँचे। फ्रेंड्स, ये वही माउंट साइनाई है जहाँ मोसेस से गॉड जलती झाड़ियों में से बात किए थे। माउंट साइनाई के नीचे जंगल में इज़राइलिट्स अपनी टेंट लगाकर कुछ दिन के लिए सेटल हो गए।
अब गॉड मोसेस को माउंटेन टॉप पे बुलाते हैं और बोलते हैं, मैं पूरे जेकब के घराने से यानी इज़राइलियों से मिलने आऊँगा, और इसीलिए जाकर इज़राइलाइट्स को बोलो कि वे पवित्र हो जाएं, अपने वस्त्र धो लें और सिर्फ अपने बाहरी रूप को नहीं, अपने मन और बॉडी को भी साफ रखें, शुद्ध रखें, और जब मैं आऊँ कोई भी पहाड़ के पास ना आए। मोसेस जाकर सबको ये बात वर्ड टू वर्ड बता देता है और सब मान भी जाते हैं। मगर ऐसा क्यों? गॉड से मिलने के लिए इतनी तैयारी क्यों? हम तो उनके बच्चे हैं। वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि गॉड बहुत पवित्र है, उनमें कोई भी पाप नहीं। और हम तो कितने पापी हैं। हम झूठ बोलते हैं, लड़ाई भी करते हैं, और गुस्सा, एंग्री होना ये हर दिन हो जाता है, और हम अपने पापों के लिए माफ़ी भी नहीं मांगते। तो कैसे फिर हम गॉड को फेस टू फेस देख सकते हैं? वेल, हमें प्रतिदिन एवरी डे गॉड से सॉरी बोलना है, प्रार्थना में अपने पापों का अंगीकार करना है, अपने पापों को मान लेना है और कोशिश करना है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हम गॉड को हर्ट करते हों। फिर गॉड इज़राइलियों से मिलने आते हैं, और जब वे आते हैं तो पता है क्या होता है? पूरा एरिया कांप जाता है, धुआं और आग से माउंटेन भर जाता है। ज़रा सोचो, कितने ही महान और पावरफुल हैं गॉड कि पृथ्वी उनके पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती है और कांप उठती है। फ्रेंड्स, जब फिर से गॉड हमें लेने आएंगे तब क्या होगा? सब कुछ हिल जाएगा और हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या नहीं होगा। माउंटेन में आने के बाद गॉड मोसेस को पर्वत पर बुलाते हैं और बोलते हैं, मोसेस बी केयरफुल, लोगों को माउंटेन से दूर रखो। मोसेस बोलता है, हाँ गॉड, सब दूर हैं, वी हैव फॉलोड योर इंस्ट्रक्शंस। देन गॉड सेज, गो डाउन एंड कम विथ एरन, तो उतर कर एरन को साथ ले आओ। फिर गॉड मोसेस और एरन को 10 आज्ञाएं देते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रेशियस 10 commandments. The 10 commandments were: First, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। You shall have no other God before me. Second, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। You shall not make unto yourself any graven image. थर्ड, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। You shall not take the name of the Lord your God in vain. फोर्थ, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। Remember the Sabbath day to keep it holy. फिफ्थ, तू अपने माता पिता का आदर करना। Honor your father and your mother. सिक्स्थ, तू खून ना करना। You shall not kill. सेवेंथ, तू व्यभिचार ना करना। You shall not commit adultery. एट्थ, तू चोरी ना करना। You shall not steal. नाइन्थ, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। You shall not bear false witness against your neighbor. टेंथ, तू किसी के घर का लालच ना करना। You shall not covet your neighbor's house. Now these precious commandments were of utmost importance. ये सारी आज्ञाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। गॉड के फेवर के लिए और सिन से बचने के लिए इनका मानना बहुत ज़रूरी था। बट इज़राइलाइट्स इन कमांडमेंट्स को मानते हैं या नहीं, और अगर मानते हैं तो कितना मानते हैं और कितना भूल जाते हैं, ये सब हम नेक्स्ट ऑनलाइन संडे स्कूल में सुनेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक कमांडमेंट्स को डिटेल में सुनेंगे और समझेंगे ताकि हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहें और पाप से दूर रहें। टिल देन आप 6 डेज़ के अंदर ये सारे 10 कमांडमेंट्स को याद कर लें जो एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1 से 17 में है। आप इसे अपने नोटबुक में लिख लें ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। आई होप आज की स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखे हैं। रिमेंबर टू प्रे एंड रीड बाइबल एवरी डे एंड ओबे गॉड इफ़ यू वांट विक्ट्री। अगर आपको अपने लाइफ में जीतना है तो आपको गॉड को और अपने बड़ों को ओबे करना होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, यू आर ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमने सीखा हाउ गॉड प्रोवाइड्स हिज पीपल विक्ट्री व्हेन दे ओबे हिम, कैसे परमेश्वर विजय देता है जब हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहते हैं। सो आई वुड इनकरेज यू टू ऑलवेज ओबे योर लॉर्ड एंड वेट फॉर हिज ब्लेसिंग, वेट फॉर द विक्ट्री टू कम। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज की संडे स्कूल को यहीं समाप्त करेंगे। Dear Lord Jesus, we thank you for your grace and for your honor and for your blessing. Thank you, Lord, that you're always with us. Thank you, Master, that you provide us with victory and your grace is always with us, Lord. Lord, we commit everything into your precious holy hand. We commit these little children who are watching us right now. Bless them, heal them, anoint them, Master. And Lord, fulfill all their desires and needs. Thank you, Jesus, once again for your blessing. In Jesus' name, amen. अब हमारे यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। Thank you friends for being with us. Thank you so much that you are a part of our family. Please invite others as well to join our online Sunday service and let's worship the Lord together. आइए हम लोग एक साथ मिल करके एक्शन सॉन्ग्स करेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए take care of yourself, take care of your family, study hard and protect yourself from all the dangers in the world. Bye-bye.